Hello everyone, my name is Pratik and this is a vlog that I'm doing which will basically walk you through this journey of a trek that I'm undertaking with my best friend from school. First things is protein bars. They give you a list of medicines that have all gone into this, but the major ones are to do with motion sickness, then to a couple of tablets to help you acclimatize faster for the acute mountain sickness that they call it. Real lifesaver is a crepe bandit. They definitely recommend you to bring this because in case anything happens to you on the trek, if you sustain a minor injury, this will help you push through. I've already put my essential innerwear in the bag. I didn't want to bring that in front of the camera. Hand gloves, really important. We are going in the month of June. It is going to be a wet trek at some point or the other, especially considering that you'll be holding a walking stick. Next up, I'm just going to walk you through some headgear. Sun cap is a must, and sunglasses. It can get pretty sunny up there if the clouds are clear, so you need a pair of good sunglasses. This will help as well in the night. It's really chilly. Some of the most important stuff that you have to take are what we call skins or tights, which will basically cut off the chafing that happens for the continuous amount of walking that you will be doing on the trek. For the clothes, they recommend you to have a mix of synthetic or commonly known as like jersey material and cotton to help you insulate, and layering. They stress so much on layering to help you keep warm. Below that, you've got to be really well layered. Layering. They really talk about layering. They stress so much on layering. So in order for you to have multiple layers, that will help you insulate. But most of the time, you really want to be layering multiple amounts of clothes. Layering. They stress so much on layering. It really helps you keep warm if you have multiple layers of clothes beneath you rather than having just one jacket. This is a thin jacket. Again, material that will repel water and not absorb water. So your top layer needs to be something that is moisture repellent. This is just like a raincoat that you probably had if you grew up in India. On a personal front, I wear contact lenses, so it's important you carry spare lenses, spare lens case, lens liquid, and eye disinfectant should you pick up some dust allergy on the way. So yeah, that's that, and really looking forward to the trek, and I'll be putting up more of these videos as we move along. Hey guys, welcome back to Trekking Along with me, Pratik. This is our first base camp at Kaflon. It was a really long drive from Dehradun, about 6 hours, where we had stopped for breakfast and lunch. We just got a small team briefing from our team leader Vivek. Hopefully I should get him on camera sometime soon. I think we're just gonna chill here for a bit, enjoy the day, socialize, get used to the environment, get used to the rules. The tents look lovely, although it's very warm right now. It's pretty tropical. Doesn't feel like we're in the Himalayas, but this is the rainy season. Hopefully a shower or two will cool it down. Hi guys, welcome back to Trekking Along with me, Pratik, and today I have a very special guest with me, Vivek Sahu, who's our trek leader. Vivek, welcome to Trekking Along. Yeah, nice meeting you. Same here. Vivek, आपने मुझे बताया था on the way कि आप पहले बैंकर थे, तो बैंकिंग से यहाँ पहाड़ों में कैसे पहुँच गए आप? इट्स अ लॉन्ग जर्नी. लाइक मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तो सबसे पहली बार मैं जब मनाली आया तो उस वक्त एक जर्नी कर रहे थे हम बस में, है ना. तो बच्चों के साथ, जैसे हमारे साथ पूरा टीम थी, 16 टीम थे हम. तो जब हम, ये स्कूल का ट्रिप था? मतलब ये हमारा स्कूल का ट्रिप था. 18 जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो 13 साल की, 13-14 साल. हाँ. तो उस वक्त क्या हुआ कि जब सारे लोग बस में सो रहे थे, लेकिन मून लाइट जैसे था रात में, ठीक है, और शैडो आ रहा था सिर्फ माउंटेन का, फिर एक रिवर फ्लो था. सब लोग सो रहे थे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी. तो शायद उस वक्त ही माउंटेन मेरे अंदर ही चला गया था कि उस वक्त से ही मुझे प्यार था नेचर से. बट ये रियलाइज़ तब हुआ जब मैं जॉब पे आया मुंबई में. वहाँ पे मैं बैंकिंग का जॉब करता था. तो वहाँ पे मैं वेस्टर्न घाट में गया. वेस्टर्न घाट में फिर ट्रैक करना शुरू किया. तो बेसिकली मैं ट्रैक लीडर्स को देखता था कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, और उनका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें मैं बहुत जज करता था.
तो धीरे धीरे फिर उनसे पता चला कि ऐसा इसमें करियर भी बना सकते हैं, फिर इसके कोर्सेज भी होते हैं। तो मैंने फिर बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया, फिर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया, और धीरे धीरे फिर मुझे इस फील्ड का नॉलेज होने लगा। उसके बाद फिर मैंने एक एडवेंचर कंपनी मनाली में काम किया, वहाँ पे 1 साल मैंने काम किया। उसके बाद फिर वहाँ से एक ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस मुझे स्टार्ट मिला कि ट्रैकिंग होता क्या है, कैसे इसको डील करते हैं इस फील्ड में जी। उस दौरान मैंने बेसिक के बाद इंडिया हाइक्स में अप्लाई भी किया था, लेकिन स्टेटिंग दैट मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था कि यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, सो वी कांट टेक यू हियर। अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने 1 साल पूरा वेट किया उसके लिए, और एक्सपीरियंस भी लिया वहाँ से। उसके बाद फिर वहाँ से जब 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद फिर मुझे इंडिया हाइक में मैंने फिर से अप्लाई किया जी। फिर सेकंड टाइम ही उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, 2 बार रिजेक्ट हुआ? 2 बार रिजेक्ट किया या दूसरी बार रिजेक्ट। इंडिया हाइक्स वाले आप यू हैव टू नोट, हाँ, मतलब ये ऐसे नहीं करते, 2 बार रिजेक्ट नहीं करते ऐसे अच्छे तो उन्होंने मुझे 2 बार रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने फिर डायरेक्ट अर्जुन सर से बात करने का चाहा। उस वक्त मैंने एक प्लान बनाया माउंटेनियरिंग से रिलेटेड। उसमें प्लान ये था मेरा कि 14,800 मीटर पीक है वर्ल्ड के, उससे रिलेटेड एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें क्या मिशन होगा, क्या पर्पस है, उसका मोटो क्या है 8,000 मीटर पीक्स क्लाइंब करने का। वो प्रोजेक्ट मैं लेके आया था, तो अर्जुन सर को बहुत पसंद आया जी। ठीक है। तो अर्जुन सर ने बोला कि ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन विवेक, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन माउंटेनियरिंग, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन ट्रेकिंग राइट नाउ। तो फिर मैंने वो बुक क्लोज किया। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया सर कि मुझे एक चांस सिर्फ ट्रैक लीडर बनने का चाहिए। अब भले ही मुझे 6 मंथ के लिए सैलरी मत दो, लेकिन आप बस एक बार देखो कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा आप रखो, नहीं करूँगा आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है विवेक, मैं अपने HR से बात करती हूँ। फिर विदिन 3 मिनट HR कॉल मी, विवेक, अर्जुन ने आपको सेलेक्ट किया है, कब आप ज्वाइन करना चाहते हो। वाह, तो आपको कैसा लगा था? आपकी इमीडिएटली 3 मिनट में कॉल? इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। तो ऐसे हो गया ना कि यशराज के स्टूडियो गए और इमीडिएटली साइन कर दिया। तो वो बहुत ही मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरा, क्योंकि मैं इंडिया हाइक में बहुत ही क्यूरियसली बहुत ज्वाइन करना चाहता था इसे, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं अपने आप को ग्रो कर सकता था, जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है ट्रैकिंग करने का, खुद को समझने का भी बेसिकली। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकिंग हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ हिमालय को। और इंडिया हाइक में एक्सप्लोरेशन भी बहुत होता है, नए ट्रैक्स ओपन करने का मौका मिलता है, जिसमें मुझे एक रुइंसहारा लेक का मिला था जी। तो उस वक्त मैंने एक एक्सप्लोरेशन किया था, और तो उसमें फिर डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं वो सब चीज़ें भी मैंने सीखी थी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें इंडिया हाइक में मुझे मिलती है। मैंने ज्वाइन किया था इंडिया हाइक सितंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, और अभी तक मैंने दिस इज़ माई 28th ट्रैक टोटल। और ये भी एक एक्सप्लोरेशन था, क्योंकि आपने बताया था कि आप मुक्ता टॉप गए नहीं हुए, ये पहली बार आप मुक्ता टॉप का ट्रैक कर रहे हो। हाँ। जो कि हमको लीड करने का था, जो विच में आई एडमिट कि कोई इजी ग्रुप नहीं था। आपने बोला भी था मुझे ऑन द वे कि यार इतना शोर शराबा तो कोई नहीं करता। हाँ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी यंग लड़के हैं। हाँ। और जैसे उन्होंने खुद बोला है कि जवान लड़के हैं, गर्म खून है उनका। हाँ। तो ऐसे मतलब की होता है कि आपने एक बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि जब हम लोग साथ में लास्ट में आ रहे थे हम लोग, कि ये जब आप हाइक करते हो तो ये लड़ाई खुद की है खुद से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था वो कि आपने कहा कि ये लड़ाई खुद की है खुद से। तो अक्सर ऐसा होता होगा कि कभी कभी मतलब नॉर्मली अगर आप देखें तो काफ़ी ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं होगा। तो उस टाइम आपने मतलब जो लड़ाई हो खुद से, वो तो मतलब आप हार रहे हो इन अ वे, आप हार रहे हो। तो तब एक ट्रैक लीडर, नॉट एज ए ट्रैक लीडर लेकिन एज एन इंडिविजुअल, कि आपको मतलब यार ये नहीं हो रहा है, कैसे मिलता है। और मतलब वो कि थक गया है, मतलब मेंटल फैटिग हो सकता है कि आपने अब यहाँ से इमीडिएटली आप दूसरे ट्रैक पे जाओगे, तो तब आप अपने आप को मोटिवेट, मतलब क्या मोटिवेशन होता है? नए ट्रैक के लिए तो मुझे खुद से मोटिवेशन रहता है कि मैं नए ट्रैक पे जा रहा हूँ। ठीक है, उस वक्त मैं पब्लिक से उतना डीलिंग नहीं करता। ओके, ठीक है, लेकिन ग्रुप जैसा रहता है उस तरीके से मैं अपने आप को ढाल लेता हूँ जी। नए ट्रैक में इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं नए ट्रैक पे जा रहा हूँ, नया एक्सप्लोरेशन फिर से है मेरे लिए वो। अच्छा, ठीक है। बट माउंटेनियरिंग इज लाइक मेंटल स्ट्रेंथ, लाइक योर मेंटल हेल्थ विल बी वेरी स्ट्रांग। क्योंकि अगर इसमें आप मेंटली थक गए तो आप कितना भी सोच लो, तो आप फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो तो आप चढ़ नहीं सकते। ये खुद की लड़ाई इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा स्ट्रेंथ आप खुद लगा रहे हो, पूरा बॉडी का। ठीक है। और इसमें अगर आप सोचो कि कोई अगर आपको पुश करके ऊपर चढ़ा दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। नोबडी कैन चैलेंज माउंटेन, राइट।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हांस योर मेंटल हेल्थ। सो और आप जैसे पूछे मेरे से कि मोटिवेशन आपको कैसे मिलता है, ठीक है। अगर हमारे साथ क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे रिपीटेड ट्रैक मिलते हैं, राइट। तो फिर मैं लोगों से इंगेज करता हूँ। अच्छा। फिर क्योंकि ट्रैकिंग तो मैंने कर लिया वो, ठीक है, देख लिया, व्यू भी देख लिया, चैलेंजेस भी देख लिए, लेकिन उसके बाद फिर मोटिवेशन क्या चाहिए। फिर मेरे पास पीपल होते हैं, ठीक है, अलग अलग। हर महीने मुझे करीबन 70 to 80 नए लोग मिलते हैं हर महीने। और वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर एक बंदा अलग से रिएक्ट करता है चैलेंजेस। जब व्हेन चैलेंजेस थ्रोन एट हिम, वो हर कोई सिमिलरली बिहेव नहीं करता है। तो वो एक आपको बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इतना एक्सपीरियंस है अभी ट्रैकिंग में, तो कौन सा एक मोमेंट था जब आपने यार इस बंदे से ना मैं ये सीख सकता हूँ, मतलब शायद बहुत इस ट्रैक पे ना, इस ट्रैक पे नहीं, जनरली कि एक ऐसा क्वालिटी या एक ऐसा मोमेंट आया कि यार ये ना मुझे अपने आप में आई वांट टू इनकलकेट दिस इन मी। मैंने एक बैच लीड किया था जिसमें 9 फ्रेंच गाइज थे। अच्छा, ठीक है। तो उनको अंग्रेजी तो आती नहीं होगी, हिंदी तो दूर की बात है, लेकिन अंग्रेजी इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी अच्छे से। हाँ। तो वो टॉक कर लेते थे एटलीस्ट। अच्छा। तो जब मैं उनको लीड किया था, उनके फिटनेस लेवल एक्सट्रीम थे। मतलब मैं वही सोच रहा था, इंडियन इतना फिट क्यों नहीं। उनकी जीन मतलब हाँ जो भी है, मतलब थोड़े फिट रहते हैं। हाँ, काफ़ी फिट थे वो। और मतलब इवन लड़कियां भी बहुत फिट थी उसमें। वो जिस स्पीड से जा रहे थे और उनका जो डिसिप्लिन था, वो देख के मैं उनसे बेसिकली सीख रहा था। अच्छा। कि इनका डिसिप्लिन कैसा है। मतलब कोई भी फॉरेनर मेरे पास आता है कभी भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी डिसिप्लिन। और माउंटेन में सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप नहीं हो डिसिप्लिन, तो आप हर चीज़ में फेल हो सकते हो। जैसे टाइमिंग को लेके मैंने हर बैच में मैं टाइमिंग को लेके बताता हूँ कि अगर आप टाइम पे नहीं आए तो काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि आज हुआ, हम जैसे हुआ, हाँ, हम थोड़े स्लो हो गए थे और उधर पहुंचने तक पूरा फॉग हो गया था, तो व्यू तो थोड़ा अगर हम थोड़ा और भी लेट अगर करते ना मॉर्निंग में, तो हमने जो आज व्यू देखा बंदर पूछ का, वो भी नहीं दिख पाता, क्योंकि वो क्लाउड से ढक जाता है। इसलिए टाइमिंग को बहुत रिस्पेक्ट देना पड़ता है यहाँ पे। तो बहुत सीरियस बात है, बहुत हो गया। अभी थोड़े कम टू सम फन क्वेश्चंस कि कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कुछ अजीब सा इंसिडेंट हुआ है जो आपको शायद हंसा दे, या डरावनी चीज़ें की बात नहीं करेंगे क्योंकि शायद कोई बाद में ट्रैक में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे कि कुछ फनी हो गया हो कि तो नॉर्मली फन टाइम क्या होता है ट्रैक पे, क्योंकि लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ट्रैक इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। ये ऐसे नहीं है कि इट्स नॉट अ केक वॉक, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि people know how to have fun, how to wind up and have fun maybe somewhere else. तो उसका एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बताएंगे तो होता क्या है कि जैसे ड्यूरिंग द ट्रैक लोगों को मोटिवेट तो करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत फन होना भी जरूरी है, नहीं तो लोग डाइवर्ट नहीं हो पाते कि हाइट कितना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सर और कितना दूर है, सर और कितना दूर है, और कितना किलोमीटर बचा हुआ है। तो गाइड्स और बेसिकली ट्रैक लीडर्स का एक ट्रिक होता है कि मतलब जितना है उससे थोड़ा कम या ज़्यादा करके बताओ, ऐसे करके। नहीं, शायद आपको ये बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई ना कोई तो ये वीडियो देखेगा जो आने वाला है ट्रैक में शायद आएगा, वो पता होता है सब। ठीक है। हाँ। तो ये होता है, और बेसिकली वहाँ पे मोटिवेशन ज़्यादा देना होता है क्योंकि लोग चल रहे होते हैं। ठीक है, बातें करना बहुत ज़रूरी है उनसे बातें करना, उनके बारे में पूछना, सो दैट कि उनका माइंड डाइवर्टेड रहे। अगर माइंड डाइवर्टेड नहीं रहेगा तो वो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि कितना चढ़ना है ना। और एक और बात होती है कि मतलब सब लोग ऐसे ट्रैक कंप्लीट करने के लिए आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता, तो एक मुश्किल चीज़ हो जाती है कि अगर उसको मतलब नहीं हो रहा है उससे, मतलब फिजिकली इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट ट्राइंग, उससे हो नहीं रहा है, लेकिन शायद वो चीज़ें आपसे छुपाते हैं क्योंकि शायद उनको डर लगता है कि यार ये मुझे वापस भेज देंगे। तो उस टाइम ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कितना मुश्किल होता है किसी को वापस भेजना आपके लिए एज अ ट्रैक लीडर, क्योंकि तो उसको तो वैसे भी ही इज़ वेरी सैड और शी इज़ वेरी सैड कि वो जा रही है, लेकिन आपको कैसे लगता है एज अ ट्रैक लीडर, आप कैसे, हाउ डू यू ब्रेक द न्यूज़ कि बॉस आई एम सॉरी बट यू हैव टू गो बैक? और मुश्किल तो इट्स लाइक टेलिंग समबडी दैट यू कांट डू इट। लाइक मेरे साथ हरकिदुन में एक केस हुआ था जी। मेरे साथ नहीं होता, एक्चुअली दूसरे बैच के साथ हुआ था। हाँ। वहाँ पे एक हेल्थ इशूज़ था, लाइक 3 केसेस हुए थे। अच्छा। और तीनों में हार्ट अटैक की वजह से 3 बंदे मरे वहाँ पे। तो वो था बेसिकली हाई बीपी की वजह से, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया हाइक में ये
जो बीपी रीडिंग है इसीलिए लिया जाता है। ये हार्ड कॉल है कि किसी को कोई आ रहा है और उसको भेज देना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता जी। ठीक है, लेकिन हालांकि इंडिया हाइक्स का फ्री ट्रैक पॉलिसी है जहाँ पे अगर आप एक बार आप ट्रैक को फीस दे देंगे तो आप यू कैन डू इट इफ यू फेल, लेकिन फिर भी किसी को वापस भेजना इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इट्स लाइक अ सिलेक्टर्स जॉब ना, कि आप बॉस आई एम सॉरी आई एम नॉट सिलेक्टिंग यू दिस टाइम, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या इट इज़ डिफिकल्ट, बट मेरा यही कंसर्न है लोगों से कि वो प्रॉपर हेल्थ चेकअप कर साथ ही आए, या डॉक्टर से या कुछ भी लिख के आएंगे तो यहाँ से उन्हें वापस जाना पड़ेगा जी। इट इज़ बेटर टू गिव द ट्रूथ वट एवर इट इज़ देयर। ओके, सो जब किसी का हाई बीपी होता है तो मुझे भेजना पड़ता है। उस वक्त अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उतना ट्रैवल करके आए, फिर वहाँ से उन्हें अगले दिन ही जर्नी करके वापस जाना होता है। तो अभी मेरे पास एक बाली पास में एक केस हुआ था। एक लेडी थी, वो 34-35 ईयर्स की थी ठीक है। बाली पास इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक इन इंडिया है। वो अभी ओपन हुआ है और उसका फर्स्ट बैच मैंने लीड किया था। या तो उसमें वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था ठीक है। फर्स्ट 4 days वॉज ओके, लेकिन जैसे ही रिवर क्रॉसिंग के बाद जैसे रिज वॉक था, 2 रिज वॉक था, फिर पास डे था, फिर पास से नीचे उतरना था। रिज वॉक जो नहीं जानते, वो एक पॉइंट आता है जो आप स्लोप्स में देखते हो, उसका सबसे डेंजरस पॉइंट ये होता है कि आपको दोनों साइड पे सपोर्ट नहीं होता है, आप दोनों साइड गिर सकते हो, तो दैट इज अ रिज। सॉरी, तो कंटिन्यू। तो उसमें क्या हुआ था, एक लेडी आई मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि विवेक मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊंगी फर्स्ट कैंप साइट में ही जी। वहाँ पे 8000 फीट ही था। अच्छा ठीक है, तो वो बोल रही है मुझे मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मैंने उनको पूछा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। मैंने उनका बीपी भी चेक किया, उनका बीपी नॉर्मल था, उनका ऑक्सीजन परसेंटेज सब कुछ नॉर्मल था। इट वाज अ मेंटल स्ट्रगल। इट वाज अ मेंटल स्ट्रगल। तो उनको उस वक्त मैंने थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं, आप मेंटली सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे, आपके लिए चैलेंज है, आप थक जा रहे हो, आप स्लो हो, नो प्रॉब्लम, स्लो होना अच्छी बात है जी, क्योंकि उससे बॉडी एक्लिमेटाइज होके जाता है। लेकिन अगर आप फास्ट हो तो प्रोबेबली चांस उसमें ये होता है कि आप एक्लिमेटाइज नहीं करते अपने बॉडी को। तो मैंने थोड़ा सा मोटिवेट किया उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आगे चलती हूँ। अच्छा। वो हर दिन चली, आगे चली, मतलब स्लो चली, मैं उनके साथ पूरा ट्रैक में रहा। ओके। क्योंकि मैं जानता था वो कहीं ना कहीं गिव अप कर देगी जी। फिर पास के दिन ही बोल रही है कि विवेक मुझसे नहीं होगा, आगे नहीं जा सकती मैं जी। उनका पूरा हाथ पकड़ के मैं एडवांस बेस्ड कैंप तक ले गया, पास तक ले गया, पास के बाद भी पूरा ले गया। अच्छा। तो तब तक वो सिर्फ यही कहती थी मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा जी। तो वहाँ पे वो बेसिकली फिजिकली तो देखो उन्होंने कर लिया, इट्स ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। मैं आपको जैसे शुरू में बोल रहा था कि ये मेंटल चैलेंज है, ये खुद की लड़ाई है, खुद की लड़ाई है। तो उन्होंने बाली पास जैसे जो 16,200 फीट पे और 4 साल पहले उन्होंने कोई ट्रैक किया था, वो फिट भी नहीं थे, वो रनिंग भी नहीं करते थे, वॉकिंग करते थे सिर्फ। ये आपने अच्छी बात छेड़ी है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। मैं खुद की बात से ही बताता हूँ कि यहाँ आने से एक्चुअली मैंने पहले केदारताल पे अप्लाई किया था, तो उसके वो तो डिफिकल्ट ट्रैक था, तो उसमें शायद वो मैंने मिसरीड भी किया था। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि 30 मिनट, मैंने 35 मिनट्स था वो 5 किलोमीटर, मैंने 30 मिनट्स में पढ़ा था वो शायद जल्दी में। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था और काफ़ी, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। इंडिया हाइक्स ने बोला कि आप एक्सपीरियंस ट्रैकर नहीं हो और वो बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, जो कि अब मुझे इन हाइंडसाइट, जो कि आज हम मुक्ता टॉप जाके आए, मुझे लगता है कि थैंक यू इंडिया हाइक्स की, मतलब शायद वो मैं कर ही नहीं पाता, या फिर शायद कुछ सीरियस इंजरी रिस्क होता, जैसे कि मैं नोइंग माई सेल्फ आई डोंट लाइक टू गिव अप, तो मैं अपने आप को पुश करता और कुछ ना कुछ हो जाता था। तो जब प्रिपरेशन की बात आती है, जो भी आपका साइट तो बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन लोग सीरियसली नहीं लेते। मैंने भी लास्ट, उसके बाद मेरी मोटिवेशन थोड़ी कम हो गई कि चलो यार वो तो नहीं मिल रहा है, तो ये तो थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, तो मैं कर लूँगा। ये तो खुद का एक ईगो भी होता है, तो उसको साइड में रख के ये करना कितना इम्पोर्टेंट है कि जो रिकमेंडेड है शायद उससे ज़्यादा करो, एटलीस्ट उतना करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। व्हाट इज इट अ डील ब्रेकर कि आप करोगे तो? सो I always give my trekker a suggestion, like if you are coming on a trek, always be prepared for the trek, because at least for 2 to 3 months. Okay. See, if you come prepared, you will enjoy the trek simply, or if you are not coming prepared, then you will struggle the trek. So it's very simple. हाँ, तो वो painful journey हो जाएगी. It's a painful journey. You will always struggle like when you are walking up, right? So आप व्यू का मजा नहीं लोगे, ट्रैक का मजा नहीं लोगे, आप मेंटल में यही सोचते रहोगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। और वो डिफिकल्ट ही बनता जाएगा आपके, क्योंकि आप ऊपर ही जा रहे हो। हाँ, तो एक समय आप हो सकता है गिव अप कर दो, एक समय हो सकता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, तो आप गिव अप ना करो, लेकिन स्ट्रगल है आपके लिए, तो इसीलिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है।
रनिंग बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रिपरेशन चाहिए। ओके। और कभी भी किसी भी ट्रैक में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप हमेशा देखो कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप डायरेक्ट डिफिकल्ट ट्रैक में जाओगे आपके लिए बहुत स्ट्रगल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। और trekking क्या है। ये स्ट्रगल मतलब ऐसे नहीं कि माइनर इंजरी होगा, इट्स लाइफ रिस्क कि Life risk। आप मर भी सकते हो। हाँ, और हाईली पॉसिबल दैट यू विल डाई। yeah, right. So there are like high altitude sickness in the mountains. So the only cure for that is like you have to descend. There is no medication for that. हाँ, मिलता वो भी नहीं आपको है। कंट्रोल कर देगा लेकिन आपको डिसेंड होना पड़ेगा। So, एक और मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था नहीं, ये जो भी आप खुद से स्ट्रगल कर रहे हो, तो अक्सर ऐसे फेज से गुजर जाने के बाद यू लर्न समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू डिस्कवर समथिंग अबाउट योरसेल्फ दैट यू प्रोबेबली डिडंट नो बिफोर। तो आपने शायद ये मल्टीपल टाइम्स किया होगा कि मे बी एवरी ट्रैक इज अ न्यू डिस्कवरी, लेकिन ऐसा एक इम्पॉर्टेंट आपने आपके बारे में कब सीखा और क्या सीखा आपने? जब मैं बैचेस लीड करना शुरू किया ना, और मुझे शुरू से पसंद था कि लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन वैसा कभी मौका नहीं मिल रहा था। मैं बैंकिंग में भी था लेकिन वैसा लीडरशिप क्वालिटी मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। हमारे ट्रेनिंग भी होते थे लेकिन वो अंदर से होता है ना कि वो चैलेंज नहीं आ पाया, ठीक है। लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी मैंने यहाँ पे ही आके सीखा। क्योंकि जब आप 20 लोगों को मैनेज करते हो, 20 से 25 लोगों को जब मैनेज करते हो, और जो फिजिकली चैलेंज होता है माउंटेन में, वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग आपका कैसा है, आप कैसे डील कर रहे हो लोगों से, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने ये चीज़ें सीखी। स्टार्टिंग में ब्रीफ करने से भी मैं बहुत घबराता था, लेकिन आज ब्रीफिंग में भी इतना कॉन्फिडेंस है, लोग उसको सीरियसली लेते हैं और सुनते हैं, और मुझे बाद में रिप्लाई भी करते हैं कि सर शुरू में आप लग रहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन आप बहुत फन भी हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से डील किया, तो इससे मुझे खुद में भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ, लाइक अपना जो लीडरशिप क्वालिटी है मैं उसको और भी इनहेंस कर रहा हूँ। एक और जो इंडिया इसके बारे में मुझे बहुत पसंद है कि वो आपका है ग्रीन पॉलिसी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ही सुंदर जगह है, स्पेशली हिमालयाज जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और शायद ऐसा माउंटेन रेंज कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगा। तो उस ग्रीन पॉलिसी के बारे में कुछ बताएं, इको बैग के बारे में कुछ आप बताएंगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लाइंबिंग, देयर इज यू आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर व्हाट यू डू। सी हिमालय एक ऐसा प्लेस है जहाँ जो क्लीन है बेसिकली। आप पूरे दुनिया में जाओ कहीं पे भी तो वो थोड़ा डर्टी है, थोड़ा क्या बहुत डर्टी है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हिमालय को ही, ऊपर प्लेस को ही अगर गंदगी कर दे तो जो वाटर आ रहा है या फिर गंगा हो गया, हाँ, जो भी वाटर सोर्सेस है वो आ रहा है नीचे ही आ रहा है, ठीक है, राइट। अगर हमने ऊपर ही गंदा कर दिया तो फिर हमें तो पानी गंदा मिलेगा, प्योर वाटर तो कहीं मिलेगा ही ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माउंटेन को क्लीन रखना है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा जो मेरे अंदर एक चेंज आया है वो ग्रीन ट्रेल पॉलिसी इंडिया हाइक में जो है उसकी वजह से आया है। मैंने खुद में मेरा एक मैं ऑडिट कर रहा हूँ कि मैं कितना वेस्ट जनरेट करता हूँ एक मंथ में, हर मंथ कितना मैं वेस्ट जनरेट करता हूँ। तो सिंस February 15 मैं इतना सा जनरेट किया हूँ अपना खुद का वेस्ट। मैंने मतलब सारे पैक्ड फूड छोड़ दिए, और कभी भी मैं प्लास्टिक कोई भी प्रोडक्ट होता है अगर मैं उसे यूज़ भी करता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं इसे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर फूड नहीं है क्या। तो मैं खुद से ही पूछता रहता हूँ। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चेंजेस सबसे पहले मेरे से आए, उसके बाद फिर मैं दुनिया में जाऊँ। जी। अगर मेरे में ही चेंजेस नहीं है तो फिर मैं दुनिया को क्या बोलूँ। हाँ, वो सही है, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो अभी एक प्रोसेस है, ये धीरे धीरे चल रहा है। नहीं, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि दूसरे छोटे छोटे जो कैंप्स में भी ले जाते हैं बच्चों को या जो भी है, उनको ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इधर नहीं, अगर आप खुद की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखोगे कि ये मतलब यू कांट, जैसे कि इंडिया एक इको बैग देता है, अगर आप कुछ भी शायद प्रोटीन बार हो गया, चॉकलेट हो गया ऑन द हाइक का, तो आप उसमें डाल दो। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इस बैच से पहले मैं दायरा बुग्याल बैच लीड किया था जिसमें फैमिली बैचेस आए थे, जिसमें 11 बच्चे थे। क्या एज थी वो 6 साल से लेकर 18 साल तक थे। अच्छा, ठीक है। तो जब मैं उन बच्चों को लीड किया, ठीक है, और जो फैमिली थे पूरे हमारे पास 19 लोग थे, जिसमें 11 लोग बच्चे थे। अच्छा, वाव। हाँ, और उसमें बेसिकली मुझे ये देना था कि एक्सपीरियंस इन लर्निंग प्रोग्राम था वो। ठीक है, उसमें बच्चों से काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करवाने थे। अच्छा, जो मेरे दिल को छू गया वैसा काम किया बच्चों ने, वो था ग्रीन ट्रेल।
वाह, हाँ। वो एक एक चॉकलेट के रैपर्स उठा रहे थे। जब मैंने उनको ब्रीफ किया ना जी। और जब उन्होंने उठाना शुरू किया और लास्ट में जब हम सेग्रीगेट करने के लिए आए सामने के लिए जी। तो मेरे पास कोई बड़े उसके किसी भी पेरेंट नहीं आए, लेकिन सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। मेरे पास वीडियो भी है उसका। वाओ, ये आप ये बता रहे हैं कि वो खुद का भी नहीं, लेकिन अगर आप उनको जाते समय कुछ मिल गया तो वो भी उठा रहे थे। तो यही है कि अगर हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं तो इंडिया शायद बहुत क्लीन हो जाएगा और स्वच्छ भारत एक रियलिटी हो सकती है। एजुकेटेड तो सब लोग हैं यार इंडिया में, लेकिन जैसे मैं इम्प्रेस बच्चों से इसलिए होता क्योंकि बच्चे उठा रहे हैं लेकिन बड़े उतना पार्टिसिपेट नहीं ले, जबकि एजुकेटेड वो भी है। जी जी, वो एक होता है ना कि हम क्यों करें, कि मतलब आप कितना मतलब आपका योगदान कितना है वो बोल सकता हूँ। तो मैंने बच्चों में जितना देखा मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ वैसे लीड। अब तो मैं बच्चों के साथ लीड करना चाहता हूँ। और हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे आए इंडिया एक्स में और ये ग्रीन ट्रेल पॉलिसी के बारे में तो ज़रूर सीखें और दे विल बिकम बेटर पीपल जनरली इफ दे डू अ ट्रैक। थैंक यू वेरी मच विवेक भाई, आपसे बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अचीव आवर ऑब्जेक्टिव and hopefully I'll see you soon again. Yeah, congratulations for completing Mukta. Thank you, Yeah, thank you, it was thank a great you. job. And you're winding off from Mukta Tal, which is the first camp you get after you finish the trek. You generally go up and come down and camp here because it's too cold there. Thank you guys for watching this. Probably I hope you enjoyed it as much as I did talking about it, and hopefully some of you will watch this and book yourself a hike with India Hikes or with anybody else for that matter. But keep the green trail policy alive. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nice meeting you. How's the Josh, guys? Hi, sir! How's the Josh? Hi, sir! How's the Josh? Hi, sir! How's the Josh? Hi, sir! Thank you. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Jai Hind! Jai Uttarakhand! Jai Uttarakhand! Thank you.